Hello my dear student, this one is the last lecture video of standard 7th, lesson number 4, angles and pairs of angles, right? Already in previous lecture we learned the property of an exterior of a triangle. Okay, what is the property? The measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measure of its remote interior angle, right? Means the sum of the measure of this exterior angle is equal to the sum of the remote interior angle, right student? So by using this property only we are going to solve the practice set 21. So what is the question here? Angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. Means this angle, whatever the angle measure is given, this is the exterior angle of the for this triangle. So given what you have to write, given measurement of angle ACD equal to how much degree? 140 degree given है. So second, see the measure of angle A and angle B are equal. Means अब क्या दिया है? The measure of angle A और B जो है equal है, measurement उनका equal है, तो हम क्या लिखेंगे? Let measurement of angle A is equal to measurement of angle B equal to, suppose we are taking x degree. ठीक है. अब क्या है? इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 140 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए और बी. मीन्स आपको ए और बी का एंगल फाइंड करना है, राइट स्टूडेंट? सो वॉट वी हैव टू यूज़ बाय यूजिंग बिकॉज द एक्सटीरियर एंगल जहाँ पे भी बढ़ रहा तो आपको समझ जाना है, इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. सो क्या लिखोगे? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल what is the property? Measurement of angle ACD, okay, equal to the sum of these two remote interior angle, right student? So measurement of angle A plus measurement of angle B, right? I am using single letter because in the question only single letter is given, so you can use the single letter also. So measurement of angle ACD कितना दिया है आपको? 140 डिग्री दिया है यहाँ से गिवन से. एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दिया है कि नो, वी कंसीडर लेट हैज ए एक्स. सो दिस यू हैव टू एक्स यू हैव टू राइट, एंड दिस ऑल्सो you have to write the x. Okay, now x variables, so you can add this. Yes, 140 is equal to 2x. अब see this, in this side we need only value of x. Okay, so what we have to do, this 2 we have to transfer here, means we have to divide both the side by 2. अब 2 से डिवाइड कर दो, 140 डिवाइड बाई 2, 2x डिवाइड बाई 2, दिस 2 कैंसल, एंड if you are going to divide 2 by 140, so what is the answer is coming? 70. that is x is equal to कितना मिला? 70 मिला. बट x is equal to 60 मीन्स x, ये किसकी वैल्यू? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी. दैट इज अवर आंसर इज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ऑल्सो 70 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 70 डिग्री. हैंस प्रूव. हैव यू अंडरस्टूड? अगेन आई एम गोइंग टू रिपोर्ट. सी रिपीट कर रही हूँ. पहले तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी आपको दिया 140 डिग्री. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्या है? जो एंगल एक्सटीरियर में है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल है. सम मीन्स दोनों का प्लस होगा. तो हमें प्रॉपर्टी की सर एक फार्मूला लिख लिया यहाँ पे. अब फार्मूला होने के बाद हमने क्या किया? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और बी इक्वल दिया है, मतलब कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर कर लो, कोई लेटर कंसीडर कर लो, एक्स ए बी एनीथिंग. आई कंसीडर एक्स, सो यू कैन कंसीडर ऑल्सो एक्स. तो एक्स एक्स ले लिया तो दोनों को ऐड कर लो, फिर डिवाइड कर लो. वॉट एवर द वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी. बिकॉज ऑलरेडी दे गिवन हैज़ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और बी क्या है? इक्वल है. तो उनका मेजर भी क्या होगा? ऑफकोर्स इक्वल मेजरमेंट आएगा. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Read the question. Using the measure of the angles given in the figure alongside, find the measure of the remaining 3 angles. Means ये जो 3 angles बचे हुए, these angles you have to find. Okay, 3 measures are already given to you and 3 measurement you have to find. So if you see in this figure, so what you can consider solution. ओके, लेट वन पार्ट वी विल टेक. मेजरमेंट ऑफ एंगल, यहाँ पे देखो ये जो 6y है तो ये भी क्या होगा? 6y होगा. यहाँ पे फिगर में देखो ये 6y है तो ये भी 6y होगा. क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है. 8y है तो 8y वर्टिकली ऑपोजिट. 4y है तो ये भी 4y वर्टिकली ऑपोजिट है. मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस y. Then we can see because they want the measures of the remaining 3 angles, accurate measurement. So first of all we have to find the value of y. येस और नो? मीन्स हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ वाई की फाइंड करनी पड़ेगी. सो फॉर दैट पर्पज व्हाट यू टू डू, फर्स्टली यू सी राइट दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. फिर आप क्या कर सकते हो? बट एंगल ए ओ ई जो है क्या होगा? ये प्लस ये होगा,
है ना, दोनों क्या होता है, इक्वल्स होता है। इक्वल है मतलब ये 10y होगा, ये 10y हो गया, तो 10y और ये पूरा का पूरा लीनियर पेयर है, 10y प्लस 8y इज इक्वल टू क्या होगा आपका 180। तो 180 से फिर वो वाले फॉर्मूले में डाल के आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, येस और नो। सो लेट अस गो थ्रू। फर्स्टली व्हाट वी विल राइट, मेजरमेंट इन फिगर, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, ए ओ एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल कौन सा होगा, ए ओ एफ इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, हाउ मच 6y, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। अब उसके बाद हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ ई, कंप्लीट एंगल कितना होगा, दो एंगल का प्लस होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ ओ ई, ठीक है। बट मेजरमेंट ऑफ ए ओ एफ कितना दिया है 6y है, और एफ ओ ई फिगर से कितना 4y है, तो ये कितना होगा 10y है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ ई कितना हो गया, मीन्स ए ओ ई इज इक्वल टू कितना 10y, बट वी नो दैट मेजर ए ओ ई प्लस ए ओ बी कितना है 180 डिग्री, राइट। बट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ ई प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री 180 डिग्री बाय एंगल्स इन लीनियर पेयर में, ठीक है। बट ए ओ ई कितना है 10y है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, ए ओ बी 8y दिया है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फिगर 8y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ ई इज इक्वल प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए ओ ई की वैल्यू कितनी दी है 10y दी है, और ए ओ बी की वैल्यू कितनी दी है आपको 8y है, तो ऐड कर लो दोनों को, कितना मिल जाएगा आपको 18y इज इक्वल टू 180, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 18, सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 18 10 है ना, 10 मिल जाएगा, मतलब y की वैल्यू आपको मिल गई 10। जैसे ही y की वैल्यू मिल गई तो आप ये जो 8y 4y 6y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो दैट इज़ आप क्या लिखोगे, पहले तो 6y मीन्स 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, ओके। देन 4y कितना होगा, 4 इंटू 10 मीन्स 40 हो जाएगा। देन 8y मीन्स 8 इंटू 10 कितना होगा 80 होगा, ओके। y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब क्या फाइंड पूछा है आपको, तीन एंगल्स, मतलब एंगल ए ओ वाई, तो मेजर दैट इज़ आप लिखोगे लास्ट में एंगल ए ओ बी जो पूछा गया है वो क्या है 8y है, 8y मीन्स हमारा कितना होता है 8 इंटू 10 दैट इज़ 80 डिग्री, मतलब दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। वैसे ही मेजरमेंट ऑफ एंगल कौन सा हमको फाइंड कर, ये ए ओ एफ कितना हुआ है 6y है, तो 6y मीन्स 6 इंटू 10 दैट इज़ 60, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एफ कितना होगा आपका 60 डिग्री। फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल ये एंगल ई ओ डी, ठीक है ना, ये तो हो गया है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी आपको कितना दिया हुआ है, आपको बी ओ सी अब 4y वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर 4 इंटू 10 दैट इज़ 40, मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा 40 डिग्री होगा। सो ए ओ बी आपको ऑलरेडी गिवन था, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना था, ई ओ डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो यहाँ पे क्या आएगा ई ओ डी, बिकॉज 8y गिवन था, आपको ये फाइंड करना था, है ना, राइट स्टूडेंट। सो लाइक दिस वे यू हैव टू सॉल्व, हैव यू अंडरस्टूड। सो लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Let us move on next question. What is the question number 3? It is given in the isosceles triangle ABC. Isosceles triangle means what? Where the two sides are equal, that we call as a isosceles triangle, है ना. Two these sides are equal. Okay. Now isosceles triangle ABC is given. So we have to draw the figure ABC. Right. Here एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल मेजर. सो क्या दिया हुआ है, एंगल ए और जो एंगल बी है वो कितने इक्वल मेजर है, मीन्स दोनों के एंगल्स के मेजर कितने इक्वल है. एंड एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ए सी डी मीन्स बी सी वी हैव टू एक्सटेंड एंड वी हैव टू मेक द एंगल ए सी डी. दिस इज एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस टू एंगल्स. And what is given, the measure of angle ACB and ACD given है. ACB means how much, ACB means this angle they gave us 3x minus 17 डिग्री, और दूसरा एंगल ACD आपको कितना दिया हुआ है 8x plus
10 डिग्री दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी. This angle and this angle ACD we have to find. Also find the measurement of angle A or B. Means 1 2 3 4 angles we have to find. Okay, let us start. सो पहले तो जो गिवन है उससे ही स्टार्ट करते हैं. ये जो दिया है उसका यूज़ करो. सो क्या गिवन है? मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 8x प्लस 10 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB आपको क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 17 डिग्री. राइट स्टूडेंट. सो अब ये दोनों एंगल को देखिए क्या पता चलता है, ये एंगल्स कैसे लीनियर पेयर है. तो हम क्या लिखोगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? 80 डिग्री, 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. ऑलवेज यूज स्टूडेंट दैट थिंग व्हाट इज़ गिवन. ओके, जो गिवन रहेगा उसी से आपका आंसर हमेशा मैथ्स में निकलेगा. तो ACD क्या हुआ हमारा? 8x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 17 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब वेरिएबल्स को एक साथ, तो 8 प्लस 3 कितना हुआ? 11x. 10 माइनस 17 दैट इज़ माइनस 7 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अब क्या होगा? 11x से इसको एडिंग, नाउ सब्ट्रैक्ट, एडिंग बोथ द साइड, बिकॉज हमेशा हम अब तक सब्ट्रैक्ट करते थे बट यहाँ पे ऑलरेडी नंबर्स के सामने निगेटिव्स आएंगे तो हमें अभी क्या करना है? एडिशन करना है कैंसिल के लिए. तो प्लस 7 सो 11x दिस कैंसिल व्हाट रिमेन? 187. तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 11 1 ज़ा 11 7 ज़ा, मीन्स x की वैल्यू हमको मिल गई 17. It means that we can find the measurement of angle ACD and ACB. Yes, so we can find measurement of angle ACD मीन्स क्या गिवन था हमारा? 8x प्लस 10 दिया था. 8x मीन्स 8 इंटू 17 प्लस 10. पुट द वैल्यू ऑफ x हियर. सो what will be given? 8x plus 17, 7 8 are 56, 8 means 8 9 10 11 12 13 प्लस 10 कितना होगा? 146. मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD आपको 146 मिल गया. वैसे ही मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB फाइंड करो. That is 3x minus 17 means 3 into 17 minus 17. 3 7s are 21. 51 minus 17. Have you understood how we are finding? Okay. So how much is coming here answer? Yes, 34. मतलब measurement of angle ACB यही फाइंड करना था आपको क्वेश्चन में. येस, लेट अस सी द क्वेश्चन. इसमें क्या फाइंड करना था आपको? ACB और ACD. सो वी फाइंड ACD and ACB. Okay, measurement of, now we have to find the measurement of angle A और measurement of angle B फाइंड करना है. मतलब ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है. बट लेकिन हमको क्या दिया था? मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B. मतलब दोनों एंगल कैसे थे? सेम थे. गिवन है, ये इक्वल है. ठीक है, कैसे है वो? इक्वल है. तो इक्वल है तो हमें पता है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD. राइट स्टूडेंट. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B दोनों सेम है. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? मेजर ऑफ एंगल, एक एंगल को मेजरमेंट ऑफ एंगल A बना दो इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD. मीन्स ये कितना होगा? 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल A, बट एंगल ACD हमने अभी फाइंड किया कितना दिख रही है? 146. सो 146. तो अब क्या करना है? इसको हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल A फाइंड करना है, तो बोथ द साइड में डिवाइड बाय 2 कर दो. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 146 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2. दिस 2 कैंसिल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल A कितना मिलेगा? 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा. तो कितना डिग्री है? 73. अब मेजरमेंट ऑफ एंगल A 73 है तो ऑफकोर्स B भी 73 है बिकॉज दे बोथ आर इक्वल. हैव यू अंडरस्टूड? अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस 2 एंगल्स आर गिवन टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर द गिवन इज देयर with that only you have to do. Okay, given में ही आंसर्स होते हैं. so many times I told you. so these 2 angles you have to ऐड करके वो लीनियर पेयर बता दो. 180 से x की वैल्यू निकल जाएगी तो x की वैल्यू से क्या होगा? एंगल ACD में जो भी इक्वेशन दी है उसमें वैल्यू पुट करो तो दोनों की वैल्यू मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD और ACB मिल जाएगा. आफ्टर दैट दे आस्क यू अबाउट द एंगल A और एंगल B में, तो बट दे सेड दैट एंगल A और B मेजर इक्वल है. तो इक्वल है तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? मेजर
sum of the remote interior angle is equal to the measurement of angle ACD मीन्स एक्सटीरियर एंगल है ना. तो एक्सटीरियर एंगल का सम करके वो क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD. तो उसमें वैल्यू पुट करो, ट्वाइस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आएगा इज इक्वल टू 146 डिग्री. वो कहाँ से आया, जो हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया था. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना हुआ, 73 डिग्री. अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 73 डिग्री है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी भी कितना आएगा, ऑफकोर्स 73 डिग्री. हैव यू अंडरस्टूड? Like this we end our this lesson. Okay, hope you understand. Try to solve so many types at home. Try to solve in rough book. Practice well, then only you can get, otherwise you can't solve the problem. First of all क्या करना है, जो भी बेसिक चीज़ है, जो भी गिवन है, try to see that what is given, and in the mathematics already what is given, that will be the your half portion of your answer. ठीक है, तो try to solve it. Thank you.